Hello friends, this is lecture number 18 and we are learning bill of exchange. Today we will take this problem. Listen to the problem very carefully. On 2nd March 2018, Sandeep sold goods on credit to Sachin for rupees 40,000. On the same date, Sandeep draws a bill on Sachin for rupees 40,000 for 3 months. Sachin accepted that bill and returned it to Sandeep. On 5th April 2018, Sandeep discounted the bill with bank at 12% per annum. On the due date, Sachin finds himself unable to make payment of the bill and requests Sandeep to renew it. Sandeep agreed on the condition that Sachin should pay rupees 10,000 as a part payment together with interest of rupees 1,000 in cash and should accept a new bill for the balance for 2 months. These arrangements were carried through. Sandeep sent this new bill, to the bank for collection. On the due date, Sachin honored the bill. Give journal entry in the books of Sandeep. So, you have realized by reading this problem that Mr. Sandeep is a seller and Sachin is a buyer. Sandeep sold goods to Sachin. Again, remember, this is seller, this is buyer. He sells goods of rupees 40,000 on credit बदल उधार. संदीपने सचिनला उधारीवर माल विकला. त्याची पहिली एंट्री. In this sum, the dates are given. तारीख दिलेली आहे. So you must write date. The date is given 2nd March 2018. March 2. On this date, the transaction हुआ. So put the date if the date is given. If date is not given, then you put serial numbers. Okay? ये ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? सचिन सोल्ड गुड्स टू सचिन ऑन क्रेडिट. तो फ्रॉम द साइड ऑफ संदीप यू हैव टू पास एंट्री. सेलर के बुक में एंट्री मारना है. तो इन द जर्नल ऑफ मिस्टर संदीप असली है. संदीप इज व्हाट? ड्रॉवर. तो राइट इन ब्रॅकेट ड्रॉवर. जो सेलर असतो तो बिल ड्रॉ करतो त्यामुळे त्याला ड्रॉवर म्हणायचं. या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला बिलाचे सगळे ट्रान्झॅक्शन येणार आहे. त्यामुळे ड्रॉवर ड्रॉवी सगळं वारंवार येतील. संदीप सोल्ड गुड्स टू सचिन. फ्रॉम द साइड ऑफ संदीप यू हैव टू पास एंट्री ऑन 2nd March 2018. संदीप सोल्ड मतलब सेल्स अकाउंट एंड उधार पे बेचा मतलब सचिन अकाउंट. These two accounts are affected. So from the side of Sandeep, sales is income, so credit, and Sachin को ने receiver of the goods, so debit to receiver. पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. आपल्याला रोल प्रॉपरली डेबिट क्रेडिट बराबर डिसाइड करो. तो हिरा पहिला एंट्री आएगा सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000. Being goods sold on credit. Write the narration compulsory. Second transaction क्या? Immediately on the same date, मतलब याच तारखेला संदीप drew a bill on Sachin. Sachin accepted it and returned it back. That is the second transaction. जसं ट्रान्झॅक्शन होईल तसं क्रमाक्रमाने एंट्री मारायची. हे लक्षात घ्या. एंट्री तुम्हाला पाठ झाली असेल. संदीप ड्यू अ बिल ऑन सचिन फॉर 3 months. 3 महीने बिल ड्रॉ किया. तो इसने बिल को एक्सेप्ट किया और इसको दे दिया. बिल अभी इसके पास आ गया. संदीप विल कॉल दैट बिल एज बिल रिसीवेबल. यू नो it is an asset for Sandeep. When asset comes, we debit it. Debit what comes here. और एक एसेट देने वाला कौन है? सचिन. सचिन इज गिवर ऑफ दिस एसेट. सो क्रेडिट द गिवर. ये पर्सनल अकाउंट है.
तो कसं अकाउंट डेबिट द रिसिवर अँड क्रेडिट द गिवर. त्याप्रमाणे बिल्स रिसिवर टू ड्रॉ द अकाउंट दॅट एंट्री appears on the same date, March 2nd. Bills receivable account debit to Sachin's account. $40,000 debit, 40,000 credit. याला 100 पाठ झाला असेल. being acceptance received. तो बिल अभी इसने एक्सेप्ट किया है और इसको दे दिया, रिटर्न बॅक टू. नाउ बिल इज इन पोझिशन ऑफ संदीप. संदीपच्या ताब्यामध्ये बिल आहे. आता त्या बिलाचं तिने काय केलं ते बघा. शांत. संदीप के पास बिल है. ही इज द ओनर ऑफ बिल, ही इज द होल्डर ऑफ बिल. और उसने क्या किया, ऑन 5 एप्रिल, आता नीट बघा, दिस इज द डेट ऑफ बिल, 2 मार्च 2018. दिस इज द डेट ऑफ बिल. बराबर. एक महीने के बाद 5 मार्च को, 5 अप्रैल को, ऑन 5 अप्रैल 2018, इस तारीख को इसने बिल को क्या किया, सेंड टू द बैंक, ही डिस्काउंटेड टू द बैंक, सॉरी, एट 12% पर annum. इस तारीख. जस्ट इमेजिन वी हैव टू फाइंड द ड्यू डेट. ड्यू डेट किती आहे बघा, जस्ट वॉच केअरफुली. This is the date of bill and the term of bill is 3 months. 3 महिन्याची बिल. तर ड्यू डेट कशी काढायची शिकवले तुम्हाला. 3 महिने ॲड करू इसमें. 2 जून 2018. दिस इज द नॉमिनल ड्यू डेट. आता लीगल ड्यू डेट कैसा निकालते हैं हम लोग, इसमें 3 दिन ऐड करते हैं. डेज ऑफ ग्रेस, बराबर. डेज ऑफ ग्रेस 3 डेज में ऐड. सो 5 जून 2018 ये हो गया तुम्हारा लीगल ड्यू डेट, विच इज यूज. 5 जूनला ड्यू डेट आहे. पण त्याच्या आधी 5 एप्रिलला, ऑन 5 एप्रिल 2018, संदीप बिल डिस्काउंटेड बिल बँक, संदीपने बँकेत बिल डिस्काउंट केलेलं आहे. त्याचा आता ट्रान्झॅक्शन आहे, तो दिला तो आपण एंट्री मारूया. ऑन 5 एप्रिल 2018 ही डिस्काउंटेड दिस बिल विथ बँक. सपोज दिस इज बँक. Bill discounting to bank is giving the possession of bill, ownership of bill to the bankers and getting immediate cash from the bank. Bank makes payment immediately cash में by deducting amount of discount. Discount का पैसा कट करके बैंक immediately cash देती है. तो अभी बिल कितना है, 40,000. बैंक डिडक्टेड हाउ मच, 12% पर annum. 12% इंटरेस्ट लगा. 12%. कितने महीने का बिल डिस्काउंट किया, 5 अप्रैल को. अप्रैल, मई, जून, 2 महीना बाकी. ड्यू डेट के लिए कितना महीना बाकी है, 2 महीना बाकी. तो आउटस्टैंडिंग पीरियड इज 2 मंथ लेफ्ट. तो 2 महीने का इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगी. सो 2 मंथ आउट ऑफ 12. सो रिमेंबर, दिस इज द डेट ऑफ बिल, दिस इज द ड्यू डेट ऑफ बिल, एंड दिस इज द डेट व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड. इस तारीख से लेके इस तारीख तक काउंट करो कितना बिल बाकी है, 2 महीने. 30 तारीख को बिल डिस्काउंट किया, ऑन दिस डे बिल इज डिस्काउंटेड एंड बैंक विल गेट मनी ऑन द ड्यू डेट फ्रॉम सचिन. Assuming that 2 महीना बैंक हैज टू वेट, बराबर. दैट इज आउटस्टैंडिंग पीरियड. फॉर दैट आउटस्टैंडिंग पीरियड बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट. दैट इंटरेस्ट इज नोन एज हियर डिस्काउंट. तर ते डिस्काउंट किती झालं, 2 महिन्याचं काम. 2 महीने का आउटस्टैंडिंग पीरियड है, 2 मंथ्स. उसका इंटरेस्ट होता है. मसी केयरफुली, 0 गेट कैंसिल. देन 12 वन जा 400 दुनिया 800. 800 रुपये बैंक डिस्काउंट कट करेगी. तो इसका मतलब 40,000 का बिल संदीप ने बैंक को दिया और बैंक ने कितना पैसा दिया, 40 में से 800 कट करके, तो 800 रुपीज़ डिस्काउंट कट किया फ्रॉम 40,000. हाउ मच लेफ्ट, 39,200 left. This much cash bank will remit to Sandeep. So from the side of Sandeep now what happens, these 3 accounts are affected. Bills receivable of 40,000 goes.
So credit what will be? Cash of rupees 39,200 comes. So debit what comes in. And 800 rupees discount deducted by the banker. It is an expense for Sandeep, even though it is income for bank. But we are recording these entries in the books of Sandeep. So think on the Sandeep side. उसके लिए expense है तो debit करना है. So debit expenses and losses, you know the rule of nominal account. So as per that rule, there are 2 debits and 1 credit. So देखो 5th April, April 5th. When date is given, you must write date. Here, cash account debit because cash comes in, you know, 39,200. Discount account debit, 800. To bills receivable account 40,000. Credit. This is how entry will appear in the books of Sandeep. Being the bill discounted with bank. This is how you should write the narration. The bill bank में discount. ओके, अशा प्रकारे हे ट्रान्झॅक्शन नीट समजून घ्यायचं, मनामध्ये चित्र आणा आणि बरोबर एंट्री मारा. पुढे काय झालं, व्हॉट हॅपन नेक्स्ट. ऑन द ड्यू डेट, मतलब 20 तारीख को 5 जून 2018. On the due date, Sachin find himself unable to make payment of the bill and request Sandeep to renew. या दिवशी त्यांनी रिक्वेस्ट केली संदीपला की बाबा हे बिल मी पे करू शकत नाही, माझ्याकडे पैसे नाही आहेत, त्यामुळे नवीन बिल ड्रॉ कर, जुनं बिल कॅन्सल कर. त्याला रिन्युअल ऑफ बिल म्हणतात. कॅन्सलेशन ऑफ ओल्ड बिल इन and drafting a new bill in that case, that is called renewal of bill. त्याची त्यांनी रिक्वेस्ट केली. So Sachin requested Sandeep to renew the bill. Sandeep agreed. संदीपने मान्य केलं, तर त्यांनी कंडिशन ठेवली. Sandeep agreed on the condition that, काय कंडिशन ठेवली, Sachin should pay 10,000 in cash. 10,000 तुम्ही द्यायचे. So out of 40,000 का बिल है, 10,000 अभी देना. तो कितना बैलेंस रहेगा, 30,000 बाकी. ये जो 30,000 बाकी है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी लगा रहा है 1,000, तो इंटरेस्ट भी देना. इंटरेस्ट दिया ऑन दिस बैलेंस अमाउंट 10,000 पार्ट पेमेंट देना, 1,000 इंटरेस्ट देना, 30,000 जो बाकी है उसके लिए न्यू बिल आई विल ड्रॉ. सो दिस इज हाउ द एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में. So Sandeep agreed on the condition that Sachin should pay 10,000 as a part payment, and together with this, he should pay interest of 1,000 also for this 30,000 balance left. जो बाकी रह गया उसके ऊपर ब्याज लगाते, वो ब्याज भी उसको डायरेक्ट अमाउंट इज गिवन हियर 1,000, वो भी पे करने का इन कैश. देन बैलेंस रहेगा 30,000 लेफ्ट. ऑन दैट बैलेंस Sandeep will draw new bill on Sachin. मग दीज अरेंजमेंट्स वेर कॅरीड थ्रू असं दिलेलं आहे. याचा अर्थ ठरल्याप्रमाणे ट्रान्झॅक्शन झाले. सो हे ट्रान्झॅक्शन झाल्याशिवाय आपण एंट्री मारू शकत नाही, म्हणून ते वाक्य देतात दीज अरेंजमेंट्स वेर कॅरीड थ्रू. मग आता आपण एंट्री मारतो. वी हॅव टू पास नाव टोटल 4 एंट्रीज. पहिला एंट्री कोणती येणार आहे, कॅन्सलेशन ऑफ ओल्ड बिल. 40,000 का ओल्ड बिल जो है उसको कैंसिल करना. सेकेंड एंट्री फॉर 10,000 पार्ट पेमेंट, part payment of 10,000. Third entry for interest of rupees 1,000 paid by Sachin immediately together with this 10,000. So balance है 30,000. त्याकरता last entry we have to pass. New bill is drawn for 30,000 by Sandeep on Sachin. So these 4 entry we have to pass one by one. So watch very carefully. I will rub out this first.
ऑल दिस ट्रांजेक्शन का डेट लिखने का ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट रिन्यूअल ऑफ बिल का ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, सो पुट दैट डेट. So we are passing journal into the books of drawer, that is Sandeep. So we have to think from his side. What is asset, what is liability, what comes in, what goes out. All the rules we have to apply from his point of view. Remember. Okay. Now let us, we will pass this 4 entry one by one. On the due date, all these transactions take place. On the due date, to write the due date, 5th June. 2018. बराबर. ठीक. On this date, पहला ट्रांजेक्शन कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल. यू नो ओल्ड बिल कैंसिल किया. कैंसिलेशन ऑफ बिल का सेम एंट्री रहता है जैसा डिसऑनर का. तो डिसऑनर और कैंसिलेशन का सेम एंट्री है. व्हेनेवर बिल इज डिसऑनर, यू नो ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवर का अकाउंट यू हैव टू डेबिट. तो सचिन अकाउंट डेबिट. सचिन अकाउंट डेबिट. और क्रेडिट करने का 4 में से क्या हुआ था, डिस्काउंट किया था, तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट. 4 ट्रांजैक्शन होता है, रिटेन, डिस्काउंट, कलेक्शन एंड एंडोर्स. उसमें से डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन हुआ था, तो बैंक अकाउंट. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द एंट्री फॉर डिसऑनर, दैट इज कैंसिलेशन, सेम एंट्री. सो 40,000 40,000. Being the bill cancelled, being the bill cancelled in arrears. Second transaction है part payment. Sachin make payment of 10,000 as a part payment because he is unable to make full payment. That is why he requested to renew the bill. So Sandeep said at least make part payment of 10,000. So उसमें agree कर लिया. So he paid 10,000 in cash. So on the same day, June 5th, we have to pass another entry for the part payment. Sachin ने cash दिया to Sandeep 10,000 as a part payment. So from the side of Sandeep, cash comes, cash account debit, and Sachin is giver, so credit the giver. उसका खाता क्लियर हो गया 10,000 से. So accordingly give effect properly. Cash account debit to Sachin's account. 10,000 10,000. Being part payment received, ऐसा संदीप बोलेगा. उसको पैसा मिला तो रिसीव्ड बोलेगा. संदीप के बुक में संदीप का नरेशन होगा. Being part payment received. This is the entry for part payment made by Sachin to Sandeep. तो ये भी एंट्री होगी. देन थर्ड एंट्री, इसने इंटरेस्ट चार्ज किया फॉर बैलेंस लेफ्ट 30,000. जो 32,000 बैलेंस रह गया, तो वो लेट मिलने वाला है पैसा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया 1,000. वो भी कैश में पेड किया, उसका भी एंट्री आएगा. That entry you have to pass. Sachin paid interest of 1,000 on the balance outstanding amount of 30,000. He paid interest in cash immediately, rupees 1,000. So that entry now will appear. Same date again, June 5th. 5th June. Watch carefully. Sachin again paid additional cash of 1,000 as interest. So this is a transaction. From the side of Sandeep, cash comes, cash account debit, and for Sandeep interest is income, credit. Debit रहेगा expense को credit करने का income, you know. So accordingly cash account debit because cash comes in to interest account.
It is income for Sandeep. 1,000, 1,000. Okay. So this is the entry for interest received. So being interest received, ऐसा लिखते हैं. Being interest received. कैश मिला तो रिसीव लिखने का. रिमेंबर, नहीं मिला तो चार्ज लिखने का. Being interest charge when payment is not made, and when payment is made, उसका लिखना being interest received. इसके बाद अभी बैलेंस होगा 30,000. वो 10,000 मिला, 1,000 इंटरेस्ट भी मिला. आउट ऑफ 40,000 10,000 मिला. 30,000 बैलेंस जो बचा है बैलेंस ड्यू, उसके लिए न्यू बिल इज ड्रॉन फॉर 2 मंथ. 2 महीने का बिल ड्रॉप किया है. तो अकाउंटिंग लास्ट ईयर की फॉर बिल ड्रॉन बाय संदीप ऑन सचिन ऑफ रुपीज 30,000 फॉर 2 मंथ. Sachin accepted and returned back to him. As usual entry, BR comes, so BR account, debit, and Sachin is giver, Sachin account, debit. This is how you have to pass in June 5. Bills receivable account, debit. To draw भी सचिन सर. तो ऑलवेज ये बाहर एंट्री पार्टस को लगा बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉ भी. जब भी बिल ड्रॉ होता है ड्रॉवर के बुक में ऐसे 30,000. बीइंग फ्रेश एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. Acceptance are the bill received. बिल मिळाले असं सांगितलं. त्याला 30,000 चे बिल मिळाले. ती ॲसेट आहे त्यासाठी. इट इज एन ॲसेट, फायनान्शियल ॲसेट. सो दिस इज हाउ एंट्री ॲक्टर्स. आय होप यू अंडरस्टँड. फर्स्ट एंट्री वी पास फॉर कैंसिलेशन ऑफ बिल. सेकंड एंट्री वी पास फॉर पार्ट पेमेंट मेड बाय ड्रॉवी टू ड्रॉवर. थर्ड एंट्री वी पास फॉर इंटरेस्ट पेड बाय ड्रॉवी टू ड्रॉवर. And the last entry for the balance amount left, new bill is drafted and accepted by drawing. This entire process is called renewal of bill. In the case of renewal of bill, such a maximum 4 entry acts. Exam में आने का ज़्यादा चांस है. Very important topic है renewal of bill. So understand it very well. And if you have any doubt, you can ask me. Okay? पुढे काय झालं? देखो. Now 2 more entry we have to pass, then problem will be finished. अब ये जो डेट है ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल, इट इज द डेट ऑफ न्यू बिल. दिस इज द डेट ऑफ न्यू बिल. इट इज पेएबल आफ्टर 2 मंथ. 2 महीने के बाद पेएबल है. तो एड 2 मंथ. कितना आ गया नॉमिनल ड्यू डेट? 5th August 2018. बराबर. This is the nominal due date in which we add again 3 days of grace. So you get legal due date 8th August 2018. This is the due date of the second bill. बराबर. Second bill का due date. तो अभी ट्रांजेक्शन क्या हुआ? Immediately on this date, when this new bill is accepted, immediately Sandeep sent this bill to the bank फॉर कलेक्शन. बँकेत त्यांनी बिल पाठवलं कलेक्शनसाठी. समजलं? एंट्री कशी येईल मला त्याच्यानंतर, पण त्याच्या आधी मी जाणार. लेट मी अबाउट दिस मेक अ प्लेस.
ओके, नाउ ऑन द सेम डेट, मतलब 5th जून को बिल इज रिटर्न टू संदीप बाय सचिन बाय एक्सेप्टिंग, अभी बिल इसके पास है, ही विल कॉल इट एज बिल्स रिसीवेबल विच इज पेएबल आफ्टर 2 months. तो उसने बैंक में इमीडिएटली भेज दिया फॉर कलेक्शन. सपोज दिस इज ए बैंक में जो अकाउंट होता है उसको नॉर्मली हम बैंक अकाउंट बोलते हैं, इट इज करंट अकाउंट. लेकिन जब बिल डिपॉजिट करते हैं उसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं, इट इज कॉल्ड बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट या बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. सो दिस इज अनदर अकाउंट इन विच द बिल इज डिपॉजिटेड. तो इस अकाउंट का नाम है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. ये संदीप का इधर बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, इसी संदीप का इधर दूसरा अकाउंट रहता है करंट अकाउंट, उसे हम सिर्फ बैंक अकाउंट बोलते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, जब बिल डिपॉजिट होता है इधर जमा होता है, लेकिन जब चेक डिपॉजिट होता है इधर जमा होता है. कैश डिपॉजिट किया तो इस अकाउंट में जमा होगा. सो दिस इज हाउ कैश एंड चेक्स एक्सेट्रा आर डिपॉजिटेड हियर, बट व्हेन बिल इज डिपॉजिटेड इट इज डिपॉजिटेड इन सेपरेट अकाउंट कॉल्ड बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. इट इज ऑल्सो नोन एज बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट. रिमेंबर, दोनों बैंक अकाउंट का टाइप है, लेकिन दिस इज सेपरेट अकाउंट. सो अभी एंट्री कैसा आएगा फ्रॉम द साइड ऑफ संदीप, बी आर गुड्स, क्रेडिट व्हाट गुड्स, एंड बैंक इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. लेकिन इस अकाउंट को डेबिट करो, इसको नहीं, बिकॉज बिल इज डिपॉजिटेड हियर नॉट हियर. अकॉर्डिंगली बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर, ऐसे एंट्री आएगा जून 5 ऑन द सेम डे. बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. बराबर. $30,000. अच्छा करें, ये पहले एंट्री, बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन. तो व्हेनेवर बिल इज सेंट बाय ड्रॉवर टू द बैंक फॉर कलेक्शन, उसके बुक में ऐसे एंट्री आएगा, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है. और एक गोस क्रेडिट ओवर गोस है, दिस इज रियल अकाउंट, दिस इज एन एसेट. तो रियल अकाउंट को डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. सो हियर बी आर गोस. तो प्रॉपरली यू अप्लाई द रूल एंड राइट द एंट्रीज. नाउ नरेशन, बीइंग द बिल सेंट to the bank for collection. This is how narration will appear. अभी बिल इधर जमा, बिल जब बैंक में भेजते हैं, when bill is sent to the bank for collection, इसका मतलब बैंक के पास बिल पड़ा रहेगा 2 महीना. ड्यू डेट को मतलब इस तारीख की 8 अगस्त 2018 को, ऑन दिस डेट कलेक्शन का काम बैंक करेगी. बैंक बिल प्रेजेंट करेगी ड्रॉवी को और पैसा कैश कलेक्ट करेगी. जो कैश मिलेगा वो बैंक इधर जमा करेगी. ओके, यू अंडरस्टैंड. इस खाते में जमा करेगी, संदीप के अकाउंट में जमा होगा. दिस इज एन करंट अकाउंट. रिमेंबर, बिजनेस में नॉर्मली ओपन करंट अकाउंट इन द बैंक, तो उसमें जमा. तो क्या हो गया, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वही दिया कि ऑन द ड्यू डेट सचिन ऑनर द बिल. ड्यू डेट को सचिन ने बिल ऑनर किया. उसने बिल ऑनर किया मतलब उसका काम क्या, जो बिल लेके आएगा, द पर्सन हु इज द होल्डर ऑफ बिल, हु इज द बियरर ऑफ बिल, हु इज द ओनर ऑफ बिल, ही प्रेजेंट द बिल, देन दिस पार्टी शुड मेक पेमेंट. ऐसा काम है, जो बिल घेऊन येईल, जो त्या बिलाचा आता मालक आहे या पैसे घ्यायचे. तर बँकेकडे बिल कलेक्शनचं काम दिलेलं आहे संदीपनी. तर बँक आली, त्यांनी पैसे दिले. मग बघा आता इथून बँक गेले, तिकडे बिल दाखवलं आणि पैसे घेतले, ते पैसे ते जमा केले. पहिलीच कॉल बिल इज ऑनर्ड बाय सचिन. सचिनने बिल ऑनर्ड केलं. बरोबर. मग एंट्री कशी आहे, हाऊ द एंट्री विल ॲपियर. तर जणू का इकडचा पैसा इथे गेला असेल. इस अकाउंट में जो 30,000 जमा था, 30,000 का बिल जमा था, वो खत्म हो गया और इस खाते में 30,000 कैश जमा हो गया. तो बैंक बैलेंस बढ़ गया. बराबर. तो ये अकाउंट जो है वो रिसीवर है और ये अकाउंट जो है गिवर है. दोनों भी पर्सनल अकाउंट है. सो एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट व्हाट हैपन, डेबिट द रिसीवर. तो इस अकाउंट को डेबिट करो और इस अकाउंट को क्रेडिट करो.
Debit the receiver, credit the giver. Bank account debit to bank for collection account. Such entry will appear, remember, on due date, August 8. Bank account debit to bank for collection account. 30,000, 30,000. 30,000, 30,000. I hope you must have understood. Remember, narration जाएगा being the bill onward. On due date. समजलं? आता कधी कधी काय होतं की बँक बिल कलेक्शन करते, कलेक्शनचं काम करते, त्याच्याबद्दल चार्जेस लागते कधी कधी, मग ते पण देतात कधी कधी बँक चार्जेस कट करतात. तर तसं मी एंट्री दाखवतो फक्त, ह्याच्यामध्ये नाही दिलेलं आहे. समटाइम दे गिव्ह, समटाइम दे डोंट गिव्ह बँक चार्जेस. इन दिस सम द बँक चार्जेस आर नॉट गिवन, बट सपोज बँक चार्जेस वुड हॅव बीन गिवन, देन हाऊ द एंट्री वुड हॅव हॅपन ते मी तुम्हाला दाखवतो मुद्दा म्हणून बघून घ्या. काळजी करू. समजा जस्ट इमॅजिन की बँकने चार्जेस लावले, कलेक्शनचं काम केल्याबद्दल चार्जेस लावले, तर ही एंट्री अशी न येता कशी येते बघ. ऑगस्ट 8. On 8th of August, how the entry would appear if bank charges are charged by bank. बैंकेकडे 30,000 बिल है, 30,000 का बिल है, इस खाते में जमा है. बैंक ने प्रेजेंट किया 30,000 कैश मिला, तो बैंक उसमें से सपोज 30,000 को कैश मिला, उसमें से सपोज 100 रुपीज कट की बैंक चार्जेस, तो कितना बचा 29,900. दिस मच कैश बैंक विल डिपॉझिट. 100 रुपये कापून बँक तिथे पैसे जमा करते 29,900. मग संदीपच्या दृष्टीने संदीपच्या खात्यात 30,000 नाही जमा झाले, एवढे जमा झाले 100 रुपये करून. 100 रुपीज इज डिडक्टेड बाय द बैंक एट सोर्स ईयर एज अ बैंक चार्जेस, सर्विस चार्ज लगाया उसने. तो एंट्री कैसा आएगा देखो अभी. फ्रॉम द साइड ऑफ संदीप एंट्री कैसा आएगा, इधर से बिल गया 30,000 का, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट, ये गिवर बराबर, और बैंक इज रिसीवर डेबिट. लेकिन इधर जमा इतने ही हुआ 29,900. एंट्री अशीच येणार, बँक अकाउंट डेबिट टू बँक फॉर कलेक्शन. पण मध्ये 100 रुपये एंट्री वाढली. हे जो बैंक चार्जेस है 100 रुपीज, हे संदीप के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट करें. समझा? तो एंट्री ऐसा आएगा देखो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना जमा हो गया बैंक में, बराबर, बैंक खाते में जमा हो गया रिसीवर 29,900. दिस अमाउंट भी है. देन बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, एक्सपेंस है संदीप के लिए, तो संदीप डेबिट करेगा उसको. बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. इधर से तो 30,000 गया, जमा इधर हो गया 29,900, क्योंकि इधर से गया 30,000. तो दिस अकाउंट इज गिवर, दिस अकाउंट इज रिसीवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये 30,000 देता तो 30,000 क्रेडिट, इधर जमा मात्र होता है इतना, तो इतना डेबिट करना. तो 100 रुपीज चार्जेस कट किया तो डेबिट, इट इज एन एक्सपेंस. सो हियर टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट 30,000. समझा? तो दिस इज द एंट्री अपियर्स हियर. ये क्रेडिट है 30,000, ये डेबिट है 29,100 and 100 रुपीज डेबिट किया बाय संदीप सिन्स इट इज एक्सपेंस. जर परीक्षेला चार्जेस दिले असतील तर अशी एंट्री येईल, बँक चार्जेस कट केले असतील तर अशी एंट्री येईल. कलेक्शनचं काम जेव्हा करते बँक, वेन बँक डू द जॉब ऑफ कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉवर, then bank sometimes charge service charges, that is called bank charges.
If that is given, then entry will look like this. But sometimes suppose this is free service given, no charges are levied, then such entry will appear. In our problem, man charges are not given, so we will pass such entry. लेकिन मैंने इस एंट्री सिखा के रखा है, समझो जैसे एग्जाम में आएगा तो ऐसा एंट्री मारना है. तो दिस इज अवर प्रॉब्लम. दिस फिनिश ऑल जनरल एंट्री आर पास. ठीक से समझो, रिपीट, व्यू देखो, वापस देखो, अच्छे समझो, समझने के बाद प्रैक्टिस करो. आई हैव गिवन यू होमवर्क ऑल्सो, डू इट विदाउट मिस्टेक. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके. Now let us see the Sachin's account in the ledger of Sandeep. In the ledger of Sandeep मतलब ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का अकाउंट वी आर गोइंग टू शो. इसमें पहला एंट्री है सचिन टू सेल्स. हियर फर्स्ट ट्रांजैक्शन जब सेल का देते हैं तो बैलेंस लिखने का नहीं, बैलेंस ब्रॉड होने का लिखने का नहीं, डायरेक्ट पोस्टिंग चल रही है. क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड एंड देन सेकंड ट्रांजैक्शन है बिल ड्रॉन. वेन पहला ट्रांजैक्शन रहता है बिल ड्रॉन का, डायरेक्ट सेल का ट्रांजैक्शन नहीं दिया, then we write balance brought down here on the debit side. The debtor है तो debit balance होगा, इसका debit credit. So this is how remember very well. Here first transaction is given, sale of goods on credit. So इधर balance मत लिखो, direct posting from Sachin's account debit to sales account. Here Sachin account is debited, so what is credited? Sales account. ठीक है, so two side of sales. Write the date because date is given March 2nd. Now write the date. To sales account 40,000. Then second entry है bills received account debit to Sachin account. Sachin account is credited. So what is debited? Bills received. तो buy side को bills received. Buy bills receivable account. Same date March 2nd. Amount 40,000. So this is what we are doing ledger posting. We are opening Sachin's account in the ledger of Sandeep and we are doing postings of the given journal entries. Third entry में cash account debit, discount account debit to bills receivable. So no name of Sachin appears. Leave it. Then next entry में 5 जून को Sachin account debit to bank account. So being debit cancel का entry है. Sachin account is debited here. What is credited? Bank account. So two side of bank. The date is June 5th. 5 June. Amount of course 40,000. 40,000 का ओल्ड बिल कैंसिल किया, उसका एंट्री और उसका पोस्टिंग किया. So this is how entry we have to do posting in Sachin's account. Then next same date को cash account debit to Sachin account. Sachin account is credited. So what is debited? Cash. Buy side का cash credit. June 5. 10,000 part payment received from Sachin. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट पेड बाय सचिन इन कैश. सो नो नेम ऑफ सचिन हियर. सो सचिन का पोस्टिंग नहीं होगा, ओनली कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. लीव इट. उसके बाद बिल्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट. न्यू बिल ड्रॉप किया. सचिन अकाउंट इज क्रेडिटेड. सो व्हाट इज डेबिटेड? बिल्स रिसीवेबल. दैट यू राइट बाय बिल्स रिसीव्ड. June 5. 30,000. ओके. तो रिन्यूअल ऑफ बिल में ये काम हुआ. लास्ट न्यू बिल इज ड्रॉन बाय कैंसलिंग द ओल्ड बिल. अब ये जो नया बिल है 30,000 का, उसको नेक्स्ट क्या किया हमने? सेंड किया बैंक को, कलेक्शन को. तो उसका एंट्री बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल. सो इधर सचिन का नाम नहीं है, तो लीव दिस एंट्री ऑल्सो. उसके बाद कलेक्शन हो गया, उसका एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट 30,000 बीइंग द बिल ऑर्डर्ड ऑन ड्यू डेट. तो इधर भी सचिन का नाम नहीं है, नो नेम ऑफ सचिन एपीयर. सो नो प्रेशर ऑफ डूइंग पोस्टिंग. बस अभी टोटल करो. टोटल में इतना ही करो. इधर टोटल कैरी हो गया. जब भी
नहीं हो गया तो बैलेंस निकालो, बैलेंस कैरी डाउन लिखने का और कुछ नहीं। इधर 40 80,000, इधर 30 10 40 10 40 सेम। दोनों साइड का टोटल हमेशा टैली होगा ऐसा नहीं। अगर टैली नहीं हो गया तो जो बैलेंस आएगा अगर बैलेंस कैरी डाउन ऐसा लिखो। सो वेर एवर यू गेट द बैलेंस देयर यू राइट बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सचिन। अब इधर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सचिन इज जीरो, कुछ भी बैलेंस नहीं आया। बोथ द साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स नो बैलेंस लेफ्ट। सचिन का उधारी सब खत्म हो गया, समझा? जीरो बैलेंस, टोटल जब टैली होगा जीरो बैलेंस। सो दिस इज ऑल मेजर कोचिंग यू हैव टू डू इन एग्जामिनेशन इफ दे आस्क, remember. I hope you understood this problem very well. Now do the practice. I have given you homework also. Solve that homework. जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आपको इजी लगेगा और आप लोग एक्सपर्ट बनोगे और एग्ज़ाम में एक्यूरेटली सॉल्व करोगे और जल्दी सॉल्व करोगे। विदिन 20 मिनट्स यू हैव टू सॉल्व इन एग्जामिनेशन। एग्जाम में 10 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आता है विच यू हैव टू सॉल्व विदिन 20 मिनट्स। You got limited time. So within 20 minutes you have to solve the sum. You have to read the sum carefully, understand the problem very well, then list out the transactions carefully, what transaction is given, then see the order of transaction properly. क्रम बघा आणि योग्य क्रमाने एंट्री मारत जावा. All these entry you have to pass, and then if they ask, then do the real portion. रेजर पोर्शन करायला सांगितलं असेल तर करायचं. हे सगळं कार्यक्रम तुमचा 20 मिनिटात झाला पाहिजे परीक्षेला आणि त्यासाठी तुम्हाला भरपूर प्रॅक्टिस करून एक्सपर्ट बनलं पाहिजे. प्रत्येक धड्याची भरपूर प्रॅक्टिस करा आणि त्यात एक्सपर्ट यासाठीच व्हायचं की त्यामुळे तुम्हाला ॲक्युरेसी येईल आणि वेळेवर तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व करा, स्पीड वाढेल कामाला तुमचं. समजलं? मग प्रॅक्टिस करा, कंटाळा करू नका. 12वीचं वर्ष आहे. ऑल द बेस्ट. सी यू सून.